हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए पोलराइजर एंड एन एनालाइजर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड light emerging from analyzer is I. The intensity of unpolarized light incident on the polarizer is I, 4I, 2I, 8I. Question number 2. In a Young's double slit experiment, the intensity of central maxima is I0. The intensity at distance beta by 4 from the central maximum is beta is fringe width I0, I0 by 2, I0 root 2, I0 by 4. Question number 3. White light is used to illuminate the two slits in Young's experiment. The separation between the slits is B and the screen is at distance D. D is very greater than B from the slits. At a point directly in front of one of the slits, certain wavelengths are missing. The missing wavelengths are lambda is B square by D, lambda is square B square by 5D, lambda is equal to B square by 3D, all of these. Question number 4. Two slits separated by a distance of 1 mm are illuminated with a red light of wavelength 6.5 into 10 to the power minus 7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed 1 meter from the slits. The distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe on the same side of the central maxima is 0.65 mm, 1.62 mm, 3.25 mm, 4.88 mm. Now solution. Question number 1. A polarizer and an analyzer are inclined to each other at 60 degree. The intensity of polarized light emerging from analyzer is I. The intensity of unpolarized light incident on polarizer is I, 4I, 2I, 8I. Suppose एक पोलराइजर P1 और एक एनालाइजर, इसका एक्सिस इससे 60 डिग्री पर है, एनालाइजर A1. Light incident on polarizer is suppose I0. जब पोलराइजर से पोलराइज होती है लाइट, उसकी इंटेंसिटी बिकम्स हाफ. यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी हाफ. सपोज दिस इज इक्वल टू I1. जो एंगल बिटवीन P1 एंड A1 इज 60 डिग्री, तो थीटा इज 60 डिग्री. अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, जो यहाँ पर जो पोलराइज लाइट इंटेंसिटी जो इमर्ज होती है, दैट इज आई. According to the Malus law, I will be equal to I1 cos square theta. I1 is equal to I by 2. I by 2 की वैल्यू पुट कर दें, I0 by 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री. तो I0 by 2 cos 60 is half,
का स्क्वायर I0/2 इंटू 1/4 I0/8। I की वैल्यू, तो I0 जो अनपोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी होगी 8I। दिस इज अनपोलराइज लाइट। D is correct option. Question number 2. In a Young's double slit experiment, the intensity at central maxima is I0. The intensity at a distance beta by 4 from the central maximum is, beta is fringe width, I0, I0/2, I0√2, I0/4. Young's double slit this is screen, central maxima, C। तो C पर जो इंटेंसिटी है दैट इज I0। सपोज S1 and S2 are slits, intensity of light I, this is also I। यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा पर जो लाइट रेज आ रही हैं उनकी फेज डिफरेंस S1C माइनस S2C इज इक्वल टू 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0 I1 रूट प्लस I2 रूट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 रूट cos phi। cos phi फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर I1 इज I एंड I2 इज also I। तो I प्लस I प्लस 2I इंटू I अंडर रूट cos phi is 0। phi is 0, this is phi। फेज डिफरेंस, the path difference, this is path difference, तो फेज डिफरेंस ऑफ phi is equal to 2 by lambda into path difference, 2 pi by lambda, path difference is 0 तो फेज डिफरेंस भी 0, दिस इज 0। तो I0 की वैल्यू हो जाती है 2I प्लस 2 इंटू I cos 0। cos 0 इज की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाता है 4I। तो I की वैल्यू हो जाती है I0/4। क्वेश्चन नंबर 1। अब जो सेंट्रल मैक्सिमा से है, यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है दैट इज β/4। जहाँ बीटा है फ्रिंज विड्थ, इफ ये D है स्पेसिंग और इन दोनों के बीच का
स्पेसिंग है स्मॉल डी और लैम्डा फ्रीक्वेंसी है लाइट की, तो बीटा की वैल्यू होती है डी लैम्डा बाई डी। तो बीटा बाई 4 होगा डी लैम्डा बाई 4D। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा अगर ये C1 है तो पाथ डिफरेंस S2C1 माइनस S1C1 x d by d, दिस इज x। यहाँ वैल्यू पुट कर दें x की d लैम्डा बाई 4D इंटू डी बाई डी, डी से डी बहुत, तो ये तो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी लैम्डा बाई 4। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो फेज डिफरेंस टू पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, ये आ जाता है पाई बाई 2। तो जहाँ यहाँ पर C1 पर जो रेज लाइट रे आ रही हैं उनमें फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का। यहाँ पर इंटेंसिटी सपोज I0 डैश, तो I का फॉर्मूला होता है I0, जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट कोस फाई। तो C1 पर जो एज्यूम की है वो होगी रिजल्टेंट I0 डैश, I1 इज I2 इज I प्लस 2 I इंटू I अंडर रूट, और फाई की वैल्यू है पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 इज 0, तो दिस फिगर बिकम्स 0। तो I प्लस 0 इज इक्वल टू 2I, और I की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है क्वेश्चन नंबर 1 I0 बाई 4। यहाँ वैल्यू पुट कर दें I की I0 बाई 4, दिस कम्स टू I0 बाई 2। तो I0 डैश जो C1 पर इंटेंसिटी होगी वो होगी सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी का हाफ। B is correct option. Question number 3. A white light is used to illuminate the two slits in Young's experiment. The separation between the slits is B and the screen is at distance D. D is very greater than B from the slits. At a point directly in front of the one of the slits, the certain wavelengths are missing. The missing wavelengths is R. Lambda is B square by D, lambda is B square by 5D, lambda is B square by 3D, all of these. ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 slits. This is screen,
स्क्रीन की डिस्टेंस यहाँ से दी है स्मॉल डी, और जो स्पेसिंग है इनका दैट इज बी. This is central maxima at C. The separation between at a point directly in front of one of the slits. एक point directly in front of the slit, इस slit के जस्ट सामने मान लिया कोई point C डैश C1. This C1 is x is equal to इसकी हो गई b/2 डिस्टेंस. ये स्लिट S1 S2 तो पाथ डिफरेंस S2 C1 माइनस S1 C1 इसका फॉर्मूला होता है x स्मॉल d by d, वेयर दिस इज, यहाँ पर जो d है स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स, और कैपिटल D जो फॉर्मूले में है वो स्पेसिंग डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. तो यहाँ इस केस में b की वैल्यू है x की वैल्यू है b/2, स्मॉल d की वैल्यू है दिस इज स्मॉल d, b और स्मॉल d की जगह है कैपिटल D की जगह स्मॉल d. तो दिस कम्स टू b²/2d. तो पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस. सर्टेन वेवलेंथ आर मिसिंग. कुछ वेवलेंथ मान लिया सपोज λ1, λ2, λ3 एंड λ4 आर मिसिंग. तो पाथ डिफरेंस अगर λ/2 का ओड मल्टीपल है तो that certain wavelength is missing. It means कि b² should be, अगर missing है, should be equal to λ1/2, 3 λ/2/2 और 5 λ3/2, 7 λ4/2 एंड सो. अगर लैम्डा का इंटीजर मिसिंग है तो ये, अगर ये b²/2d हाफ के λ/2 का ओड इंटीजर है तो वो वो वेवलेंथ मिसिंग होगी. λ1/2 इज b²/2d, तो λ1 is 2b²/2d is equal to b²/d. जिस वेवलेंथ की वैल्यू b²/d होगी वो मिसिंग होगी एट पॉइंट C1. 3 λ2/2 वैल्यू होगी b²/2d के,
तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 बी स्क्वायर बाई 2d और बी स्क्वायर बाई 3d। तो जिस वेवलेंथ की वैल्यू बी स्क्वायर बाई 3d होगी वो भी मिसिंग होगी। सिमिलरली लैम्डा 3/2 जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर बाई डी होगी वो भी वेवलेंथ मिसिंग होगी। ये आ जाता है बी स्क्वायर बाई 5d और 7 लैम्डा बाई 4/2 जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर बाई 2d है वो भी मिसिंग होगी एंड सो ऑन। ये वेवलेंथ मिसिंग होंगी जो क्वेश्चन में दिया है। बी स्क्वायर डी इज मिसिंग, बी स्क्वायर 5d is missing, b square 3d is missing. It means all of these is the correct option. D is correct option. Question number 4. Two slits separated by a distance of 1 mm are illuminated with red light of wavelength 6.5 into 10 to the power minus 7. The interference fringes are observed on a screen 1 meter away from the slit. The distance between the third dark fringe and fifth bright fringe on the same side of the central maxima is 0.65 mm, 1.62 mm, 3.25 mm, 4.88 mm. एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसकी दो स्लिट्स, स्क्रीन, ये सेंट्रल मैक्सिमा, सी, ये S1 स्लिट, S2, इनके बीच की स्पेसिंग स्मॉल डी और दिस इज डी। डी की वैल्यू है 1 मीटर, कैपिटल डी इज 1 मीटर और स्मॉल डी इज 1 mm, 1 mm और 1 into 10 to the power minus 3 मीटर। लैम्डा जो वेवलेंथ है लैम्डा इज 6.5 into 10 to the power minus 7 मीटर। जो वेव इस तरह से चलेंगे सेम साइड में, तो जो डार्क फ्रिंज जो ब्राइट फ्रिंज बनेंगी उनमें जो सपोज this distance is x, तो x d by lambda, this is path difference, is equal to n lambda. Path difference और x is equal to
n lambda d by small d. For bright fringes, n should be 1, 2, 3, 4, 5 and so on. For dark fringe, n should be half, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2, 9 by 2, 11 by 2 and so on. Fifth bright fringe. For fifth bright fringe, x5, अगर x5 से डिस्टेंस को डिनोट करें तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए 1 2 3 4 तो फिफ्थ 5 पुट कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 5 लैम्डा d by d. फॉर थर्ड डार्क फ्रिंज, अगर इसको x3 डैश से डिनोट करें तो डार्क फ्रिंज के केस में n की वैल्यू होगी, दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज एंड दिस इज थर्ड डार्क फ्रिंज. तो n की वैल्यू है 5/2, तो x3 डैश हो जाता है 5/2 लैम्डा d by d. Distance between fifth bright fringe and third dark fringe x5 minus x3 dash is equal to 5 lambda d by d minus 5/2 lambda d by d. ये आ जाता है 5/2 lambda d by d. वैल्यूज पुट कर दें. 5/2 लैम्डा की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 to the power -7, d 1 meter and small d is 1 into 10 to the power -3. 1 into 10 to the power -3, this is meter. 2.5 into 6.5 into 10 to the power -4 meter. 16.25 into 10 to the power -4 meter और 1.625 into 10 to the power -3 meter और 1.625 10 to the power -3 into 10 to the power 3 millimeter. तो x5 minus x3 डैश ये आ जाता है 1.625 mm और इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.62 mm. तो डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज इज 1.62 mm. B is correct option. B is correct option.